India-US trade deal that seems to be the talk on everyone's minds. On what exactly does this trade deal entail? Farmer unions and trade unions across India, including the Samyukt Kisan Morcha, All India Kisan Sabha and the Bharatiya Kisan Union, have called for nationwide protests and a general strike on February 12th, targeting the proposed India-US trade agreement framework, which they say threatens farmers' livelihoods. In fact, this comes just days after, on February 3rd, that India and United States had announced a framework for a new bilateral trade deal aimed at boosting two-way trade by cutting tariffs on a range of goods, including industrial products and selected agricultural items. Now, the government calls it an economic opportunity. Farmers and the opposition call it a complete sellout, saying that the one sector that was protected so far, the agricultural sector, that the Modi government has opened doors up for this sector to the United States free of cost, without any penalty, without any tariff imposed on them. So what is really in this deal and why is it really sparking anger? Now, according to the Commerce Ministry, India has agreed to reduce or eliminate tariffs on certain American agricultural and food products, including distillers' dried grains with solubes, soybean oil, red sorghum for animal feed, tree nuts, fresh and processed fruits, wine and spirits, and crucially, additional products, quote unquote, which have really not been spelt out as yet. There's no specified detail of what these additional products would be. But imagine one could certainly panic when we are talking about fresh and processed fruits, tree nuts, wine and spirits. These are products that coming in from the United States without any tariff on them could hurt the domestic market in India. Farmers here raising an alarm. Well, at the same time, you have the government of India insisting that the sensitive sectors such as dairy, poultry, cotton and fuel ethanol are all fully protected. Commerce Minister Piyush Goyal has said that there is hardly any item where a farmer can feel threatened by it. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan has gone a step further, claiming Indian farm products will get zero tariff access to the United States, while American agricultural products will continue to face tariffs in India, ensuring full protection of the domestic market. Now, on the face of it, many of these products don't appear to pose a major threat given India's limited domestic acreage or production in some of these categories. In fact, farmer unions, on the other hand, argue it's not very simple as the government claims. They say first the term additional products remain undefined, and now raising fears that this additional products could actually have more agricultural items that could actually be added, which the government is not revealing. And the farmers union, the opposition, now demanding that the government have a public debate or a parliamentary oversight. Now, the trade deals often follow a framework first, which details later approach, meaning today's assurances may not bind future governments or tariff revisions. Even niche imports can have indirect effects by distorting prices, impacting animal feed costs or disrupting allied sectors like poultry and dairy. And finally, the concern is not just what is imported, but at what price. US agriculture benefits from large subsidies and scale advantages, allowing American produce to enter markets at prices Indian farmers say they cannot really compete with. The opposition has gone on an offensive, complete offensive. Congress spokesperson Pawan Khera has called this agreement not a deal but a surrender altogether to the United States, arguing that India would soon become a dumping ground for American products, hurting the interests of the farmers and the small, medium industries that exist in India. AAP MP Sanjay Singh, in his post, has also on social media said Prime Minister Modi's trade deal with the United States is a huge betrayal to the country and a deception against India and Indian farmers. Well, India remains an agrarian country. Remember, we thrive on agriculture. We are an agriculture country. Agriculture employing a large share of population, and with memories of the 2021 farmers' protests that are still fresh now, even an interim trade deal is being viewed not just as an economic policy but as a political and a social flashpoint. Ultimately, we've got to see what are the real trade-offs with this trade deal with the United States. What really are we trading with? Let's quickly take you through all the reactions coming in from the government, the opposition. Let's hear it. इस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स
और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया। इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। All right, let me quickly cut across to our guests joining us on this. We have Ambassador Jayant Das Gupta, who's a former ambassador to the WTO. We also have Vijay Sarda, who's an advocate and agri-economist, and Savit Malik, president of the Kisan Union. Let me start with, the Kisan Union representative who's currently here on our panel to give us a little sense on what the farmers are really worried about at this point. Savit Malik, your take on this. Where do you think you've been slighted? Where do you think the farmers' rights and interests have been compromised? Do you believe that, because there's not much detail here, but from what I see, there are fruits, there's wines and spirits, there are nuts that now will have entry of US goods into the Indian market. We believe at this point there's still no clarity whether India is going to be levying tariffs on on American exports, but give us a little sense of what we know so far. How are you feeling threatened with that little information we have? देखो मैडम, अभी जैसा आपने बताया और हम भी देख रहे हैं, अभी ये जो डील है ये फाइनल नहीं हुई है। इसके कुछ मसौदे आए हैं, उन्हीं को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये डील नहीं है। मैं लगातार कई दिन से इस मुद्दों को लेकर चर्चा में हूं। और सबसे पहले जो हुआ था कि अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट आता है कि हमारा ये समझौता हो रहा है, मतलब अमेरिका द्वारा आदेशित किया गया। और जैसे आज ट्रंप ने बोला है मोदी जी के लिए, वो बहुत शर्मनाक बात है। और ये डील नहीं हुई है, समझौता नहीं हुआ, ये आदेशित किया गया है। और इसमें जो भारत का किसान है, जो सोयाबीन का किसान है, मक्का का किसान है, बादाम अखरोट का किसान है, और डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं, उनको लेकर संभावनाएं जताई जा रही है कि किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। अभी क्योंकि डील नहीं हुई है, उधर से आदेशित हुए हैं, अब आगे डील बन रही है, क्या उसमें बनेगा वो भविष्य की बात है। लेकिन अभी जो किसानों को आशंका है कि हमारा जो नुकसान होगा वो खेती के सामानों में होगा, क्योंकि अमेरिका में सब्सिडी लगातार बढ़ाई जा रही है और दी जा रही है। 2024 में वहां पर 10 मिलियन सब्सिडी दी जा रही थी किसानों को, जो बढ़ाकर 25 में 40 मिलियन कर दी। और इस साल वो 45 से 50 मिलियन तक सब्सिडी किसानों को देने जा रहे हैं। तो हमारा किसान छोटी जोत का किसान है, छोटे छोटे किसान हैं जो अपना खेती पर निर्भर है। और वहां के बड़े किसान होंगे, उनके पास मशीनरी ज्यादा है, उनको सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे, और यहाँ आने पर किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। और मैं फिर कहता हूं, ये डील नहीं है, ये अमेरिका के द्वारा आदेश पारित किया गया है। और इसमें जो है किसान को क्या नुकसान होगा ये तो भविष्य बताएगा, क्योंकि अभी तक सरकार को भी नहीं पता। अगर डील होती तो हमारे मंत्रियों को पता होता, हमारी सरकार को पता होता, हमारे प्रवक्ताओं को पता होता कि डील क्या हुई है। डील का अभी किसी को कुछ नहीं पता है। अभी तो जो समझौता, जो आदेश वहां से आने हैं, वो उन आदेशों को ये फॉलो करेंगे। तो फिर अगर ऐसा है तो इतने सारे किसान यूनियंस आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार हमारी दूसरी सरकार के सामने ना झुके और उनके आदेश को ना माने। वो स्पष्ट आगे कहे कि हम आपकी डील को नहीं मानते हैं, आपके आदेश को नहीं मानते हैं, उनसे जो समझौता करने का दबाव बना रहे हैं उसको कैंसिल किया जाए। इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। 12 फरवरी को पूरे देश में किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेगा। और हमारा उद्देश्य
यही है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश के सामने मत झुके और अपने शर्तों पे, अपने नियम के हिसाब से काम करे, किसी के दबाव में आके काम ना करे, किसी का आदेश ना माने। हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, 150 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है, पूरा देश एकजुट है, एक साथ खड़ा है। किसी भी दूसरे देश के दबाव में आके अपने किसान को, अपने मजदूर को, अपनी इंडस्ट्री को दूसरों को बेचना नहीं चाहिए। इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है। अभी जो बोलेंगे प्रवक्ता, किसी से पूछ तो लेना आप कि क्या ट्रेड डील हुई है। सारी जानकारी लिए बिना आपने अभी डिसीजन लिया है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि दबाव डालना चाहते हैं कि अगर आप वो सोच रहे भी, अगर कुछ सोच भी रहे उस डायरेक्शन में, वो ना सोचे कि एग्रीकल्चर का पूरा बंद करें। अगर यूएस गुड्स पे ज्यादा वो टैरिफ लगाए तब ठीक हो आप? अगर यूएस का गुड्स इंडिया में आ रहा है अंदर, एग्रीकल्चरल गुड्स, उस पे अगर इंडिया ज्यादा टैरिफ लगाए तो फिर आपको देखो ठीक मैडम, लगता है? अभी जो हमको जानकारी है, हमारा विदेशी जो कारोबार होता है वो 887 मिलियन डॉलर के आसपास होता है, और अमेरिका कह रहा है कि 500 करोड़ का हम ही से करना है। अभी तक जितना वर्ल्ड में होता है उससे ज्यादा वो कह रहा है कि हम ही से आपको समझौता करके व्यापार करना है। तो ये तो सीधा सीधा दबाव की कहानी है। और वो चाहते हैं कि सबसे ये अपना बंद कर दे, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, महंगा तेल हमसे खरीदे, हमसे कृषि प्रोडक्ट खरीदे और सब खरीदे। तो इसको लेकर, और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये डील नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से आदेश है। अब उसको हमारे प्रधानमंत्री मानते हैं या उनको जवाब देते हैं, ये आगे की बात है। अगर डील होती तो हमारी सरकार को पता होता, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता है, उनको पता होता कि क्या समझौता हुआ है। अभी तो किसी को पता ही नहीं है। अभी तो सब अंधेरे में तीर चला रहे कि ये होगा वो होगा। डील का मतलब क्या होता है? डील का मतलब तो यही होता है ना कि बैठ के बातचीत हुई, हमको पता है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। अगर किसी को पता हो तो बताओ कि क्या समझौता हुआ है। अभी तो भविष्य पे सब चर्चा कर रहे हैं, और उनकी ठीक है। तरफ से जो जो आदेश आएगा वो ये मानेंगे। ऑलराइट, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं विजय सरदाना के पास जाना चाहती हूँ। सर, योर टेक ऑन दिस, व्हाट इज इंडिया रियली ओपनिंग अप टू द यूनाइटेड स्टेट्स? Whatever minimal information that we have is that India has agreed to eliminate or significantly reduce import duties on several US goods, agricultural goods and some food products, and that primarily is animal feed and grains, tree nuts like almonds, walnuts, pistachios, oils, processed food, soybean oil, beverages, wine and spirits, special items that includes blueberries, cranberries, and whatnot. So Indian farmers are feeling very worried because they feel that this could really kill the domestic market. Not just farmers, in the industries as well, dealing with these items, they fear that the domestic market could die, and farmers believe that this is just initial information. There could be a lot more agricultural products that could be compromised. What's your take? What more do we know on that? First of all, good evening to you and fellow panelists and the viewers. Do you know how much we import today in agriculture products? We are arguing lot many things. Today, India is importing $36 billion worth of agro products into India. $36 billion. आज भी हम $36 बिलियन का आयात कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहली चीज, हमारे पास सरप्लस क्या है? मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूं ताकि इस डील का लॉजिक समझ में आए, अदरवाइज हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट में घूमते रहेंगे। हमारे पास तेल नहीं है, खाने का तेल। हिंदुस्तान का 70% खाने का तेल इंपोर्ट होता है। आज भी हम करीब $17 बिलियन का तेल आयात करते हैं। आपको याद होगा कि जब तेल आने में दिक्कत थी तो हमारे यहाँ तेलों के दाम 200 से ऊपर पहुंच गए थे, और पूरे देश में हंगामा इस बात को लेकर हो रहा था कि तेल इतना महंगा कैसे हो गया। तेल इतना महंगा इसलिए हो गया क्योंकि हम तेल पैदा नहीं करते हैं। पहली बात, जितनी जरूरत है हम सिर्फ उसका 30% पैदा करते हैं, 70% आयात करते हैं। दूसरा नंबर, हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड नट को लेके।
आज करीब $4.5 बिलियन का हम ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। $4.5 बिलियन का आज भी। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जिस तरह से दिवाली पे, त्योहारों पे हम लोग ड्राई फ्रूट बांटते हैं, फेस्टिवल में खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सब विदेशी है। हमारी जो प्रोडक्शन है वो मात्र 20% है हमारे देश की जरूरत की, बाकी हमें आयात करना पड़ रहा है। इसी तरह से हम मछुआरों की बात कर रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन करीब $2 बिलियन का हम एक्वाकल्चर प्रोडक्ट भी आज इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में एक्वाकल्चर में कम से कम 50 वैरायटी हैं। हम हिंदुस्तान में सिर्फ 10-12 पैदा करते हैं जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं श्रिम्प्स में। जितनी बाकी सी फूड्स आता है वो इंपोर्ट होता है। इसी तरह से मीट प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह से कन्फेक्शनरी है। हिंदुस्तान कहने को मसालों का बादशाह है। हमारे जो मसाले हैं, करीब $1.2 बिलियन की चाय, कॉफी और मसाले हम आयात कर रहे हैं। हिंदुस्तान कभी मसालों में सरप्लस हुआ करता था, अब नहीं है। हम मसाले आयात कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो आज ट्रेड डील कर रहे हो, अगर हम इस गलतफहमी में हो कि साहब हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट है, लाने की क्या जरूरत है, हम इसका मतलब जमीनी हकीकत जानते ही नहीं। हम किस में सरप्लस हैं? हम एक गेहूं में, उसको डील से बाहर रखा गया है। चावल में वो डील से बाहर है। गन्ना मतलब चीनी वो डील से बाहर है। मक्का वो डील से बाहर है। तो जिसमें हम सरप्लस है वो सिर्फ है कार्बोहाइड्रेट। हमारे यहाँ ऑयल नहीं है, हमारे यहाँ प्रोटीन नहीं है। तो अगर आपको हिंदुस्तान में महंगाई कंट्रोल करनी है, किसान क्या करता है? जो गन्ने का किसान है या गेहूं का किसान है या धान का किसान है, वो एक फसल उगाता है, बाकी 25 फसलें वो खरीदता है अपने घर में। उसको तेल भी चाहिए, उसको दालें भी चाहिए, उसको सब्जियां भी चाहिए, फल भी चाहिए। और जब उन सबके दाम बढ़ने लगते हैं तो वो कहता है महंगाई हो गई। You're saying, तो Sir, मेरा ये Vijay, you're saying that people, farmers who buy, or people who buy these additional products, that you're saying that can't be grown in India. What about the domestic market that's selling, nuts and soybean oil and whatnot? The domestic markets, how could that be protected if we're going to allow for imports with very less duty? मैडम, आज भी आप देखिए ना, रियलिटी को देखिए। हम लोग हवा में बात करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं। आज भी जो आप खाने का तेल, तो आप हमें रियलिटी बताइए। और क्या बता रहा हूं मैं इतनी देर से? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आपको नहीं, आप डोमेस्टिक मार्केट, आप बोल रहे हो कि डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। डोमेस्टिकली हम सोयाबीन ऑयल, डोमेस्टिकली हम नट्स और सीड्स, डोमेस्टिकली हम रेड सोरगम, ये सब हम नहीं प्रोड्यूस करते हैं कुछ। We are not able to do it domestically. Blueberries is also a big market now in UP, I know. Red sorghum, walnuts, almonds, pistachios. You're saying none of that can be, harnessed domestically, and we need to bring it from outside. Is that what you're saying? मैं आपको वही डेटा क्यों बता रहा हूं? मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं। अब लेट्स बी गो वन बाय वन। यू आर टॉकिंग ऑफ एडिबल ऑयल। जितना हिंदुस्तान में कंजम्पशन है 24 मिलियन टन के आसपास एडिबल ऑयल का, हमारा सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्शन है अबाउट 1.5 मिलियन टन। ओनली 10% ऑफ व्हाट इंडिया नीड्स। बाकी 90% आप कहां से लाओगे? रिमेनिंग 20% इज योर मस्टर्ड एंड अदर ऑयल सीड्स। तो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज 30% ऑफ योर डिमांड। तो आपका जो किसान, देखिए इश्यूज दो मिक्स मत करिए, इस इशू को समझिए। आपके यहाँ पे डिमांड की ज्यादा है, सप्लाई कम है। इसीलिए अगर आज आपको तेल अफोर्डेबल मिल रहा है तो वो इंपोर्टेड तेल खा रहे हो आप। हमारे सारे किसान भाई इंपोर्टेड तेल खा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसान का तेल नहीं खा रहे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज की तारीख में जो प्रोडक्शन है वो मात्र 30% है जो हमारी जरूरत है उसका। ड्राई फ्रूट जितना आप खा रहे हो वो इंपोर्टेड है। फ्रेश फ्रूट्स के बारे में, फ्रेश फ्रूट्स इज आल्सो। आप नाम ले रहे हो मलिक साहब, यहाँ इनको भी पता है कि ये फूल जो फल है ना, बेरीज, ये हिंदुस्तान में नहीं उग सकते। इसके लिए आपको ठंडी जगह चाहिए।
ये रेगिस्तान में, यूपी में, हरियाणा में नहीं उग सकते। लेकिन एग्रीकल्चर इज ए क्लाइमेट सेंसिटिव एक्टिविटी। विजय जी, जो हमारी तिलहन की फसलें हैं, सरकार जी। को उनको बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे यहाँ गन्ने का रेट है, जैसे बड़ी दिक्कत होती है, गन्ना चीनी एक्सचेंज होता है, उसकी खेती ज्यादा होती है, तो सरकार को प्रोत्साहन देके सरसों की, जो हमारी सरसों है, तिल है और सोयाबीन है, इन फसलों को वो ज्यादा कराना चाहिए कि जिसमें देश में उत्पादन बढ़ सके। बिल्कुल सही कह रहे हो, यही डिमांड किसान और- संस्था को करनी चाहिए। आप लोग और विजय प्रॉब्लम क्या है? जी मलिक आपको साहब, एक पता मिनट, है, विद ड्यू आपको रिगार्ड, पता है कि आज गेहूं तक का कोई क्या हाल किसान है। आंदोलन इस बात को लेके नहीं देखा कि हमें नई तकनीक चाहिए। आज तक मैंने आंदोलन नहीं देखा। हमें एक्सटेंशन सर्विसेज चाहिए, इस पे आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ। हमें अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए, इस पे कोई आंदोलन नहीं हुआ। मिलावटी नहीं, खाद बीज भी बाहर दवाई- से ही आएगा। बीज को लेकर ही सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है कि हमारे जो देसी बीज है उनको खत्म किया जा रहा है, और बाहर से ऐसे बीज आ रहे हैं जो एक बार बोए जाते हैं, अगली बार नहीं बोए जाते। आजकल बीज की कंपनियां आ गई। किसान अरे के भाई, जो खर्च है वो ऐसा लगातार बढ़ते जा है, रहे हैं और मलिक उसकी साहब, आमदनी घटती जा रही है। अभी मलिक साहब, यूरिया की बोरी, आपको ऐसा पता होगा, 5 किलो यूरिया फिर कम कर दिया गया है। पहले 50 किलो की यूरिया की बोरी थी, वो 40 की हो गई है अब। मैं सब देख रहा हूं किसान और के सब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उसके मेरा रेट नहीं बढ़ समस्या- रहे हैं, वो पहले से घाटे में है। और विदेश से अगर ये सारी चीजें आएंगी तो जो हमारी दलहन और तिलहन की है, आपको पता है कि दालें भी बाहर से बहुत सारी आती हैं, तो यहाँ का किसान तो और कमजोर हो जाएगा। यही तो हमारी चिंता का विषय है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। आप किसान नेता हैं, आपसे एक निवेदन है, एक बार ढंग से बैठ के ईमानदारी से भारत की कृषि नीति क्या होनी चाहिए सब्सिडी के अलावा, क्योंकि आपकी हर चीज में सब्सिडी एंगल होता है। सब्सिडी को थोड़ी देर बाहर रख के ये बताइए कि भारत को बीज कौन सा चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, भारत को कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, किसानों को वो नाम लिखो। एक ढंग से चर्चा तो करो। आप लोग करना ही नहीं चाहते हो। आप लोग सिर्फ कहते हो सरकार सब्सिडी दे दे, ये कर दे, वो कर दे, जेब में पैसा डाल दे, पूछे कुछ मत। ऐसे यार सरकारें बात ही नहीं ultimately- करना चाहती। सरकार तो अपनी हठधर्मिता करना चाहती अरे है। भाई, मैं कह रहा इतनी हूं, बार आप बातें हुई, आंदोलन काम के करिए दौरान ना, 12 बार बात हुई, मलिक साहब कोई एक काम सहमति नहीं करिए, बनी। उसके बाद एक सरकार काम मैदान छोड़ के भाग जाती है। एक काम सरकार सुनना ही करिए, नहीं चाहती। आप सुनो तो सही। आप एक काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा, पंचायत बुलाइए अपने बड़े नेताओं की, उसमें बैठ के 3 दिन भारत की कृषि नीति क्या होनी चाहिए जो कंज्यूमर के लिए भी अफोर्डेबल हो, किसान के लिए भी फायदेमंद हो, देश की जरूरत को भी पूरा करे, इस पे एक खुद ही नीति बनाओ ना। सरकार के भरोसे क्यों बैठे हो? जनता के सामने रखो कि ये किसान की सोच है, उसके बाद हम पूछेंगे सरकार से कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप अपना क्यों नहीं रहे हो? आप खुद बनाओ ना। आप क्या प्रॉब्लम क्या है? जिम्मेवारी लेना ठीक भी है, चाहते कौन हो। मानता है? हर प्रोडक्ट की एमआरपी होती है, किसान के किसी भी अरे प्रोडक्ट यार, आप की पॉलिसी तो बनाओ। कोई नहीं होती आप- कि क्या रेट आप बेचेगा। बहानेबाजी उसको तो नहीं, मिनिमम बहानेबाजी सपोर्ट प्राइस नहीं। ही नहीं मिल रहा है। उसको तो आप एमएसपी बहानेबाजी देने को नहीं, आप तैयार पॉलिसी नहीं है बनाओगे। सरकार। आप पॉलिसी सरकार बनाओगे। किसान मैं को एक तो चीज कह रहा एमएसपी हूं, देने को तैयार नहीं है। जो मिनिमम मैं- सपोर्ट प्राइस होता है जिसको सरकार तय करती है, वो किसान को नहीं मिल रहा है। मैं आप आपको एक नीति जवाब की दे बात दूं। कर रहे हैं, वो तो सरकार के हाथ में है। मैं आपको जवाब दे उसकी रहा हूं ना। घोषणा अब करें। आप अगर सरकार के, अगर किसान के किसी भी प्रोडक्ट को जो सरकार द्वारा घोषित एमएसपी है उससे कम पे खरीदा जाएगा, मेरे तो को एक उसको बात सजा का बता दो। प्रावधान करो। मेरे को एक बात बता दो, मैं एक सुझाव देता हूं आपको। हिंदुस्तान का हर कंज्यूमर, हमारे मेरी देश बात में पूरी सुन लो, वकील और सुनने डॉक्टर की बहुत आदत सारे, डालो। सुझाव प्रॉब्लम देने किसान वाले नेताओं बहुत में सारे याद है कि लोग आपको मिलेंगे। लगता है आपको सब पता है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सुनने की आदत नहीं डालते हो। जी, आप और हम कई Hang सालों on, से लगातार I've got to hold on मेरा for a एक- moment. I एक- also want to bring in एक- Ambassador एक जवाब Dasgupta. एक सवाल का For the जवाब देना moment, तो- for the moment. कम से कम आप सुन सरकार तो उसी लो को ना। जवाब आप दे, सुनने को MSP तैयार नहीं हो। सुनो, मैं एक आखिरी सवाल दे रहा हूं, आपकी एमएसपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सुन ही जाएगी। सुन ही रहे। एक मिनट। आज हिंदुस्तान का Ambassador हर दासगुप्ता, कंज्यूमर एमएसपी के ऊपर पे कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि वो किसान तक नहीं पहुंच रहा। मेरा एक सुझाव है, सारी एपीएमसी मंडीज किसान संस्थाओं के हवाले कर दो। कंज्यूमर जो पैसा देगा सब किसानों के पास जाएगा। क्या आपके संगठन में इतनी हिम्मत है ये डिमांड रखें, या आप भी उन मंडियों के दलालों के चबार में दबे हुए हो? मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों को। आप देखो, एपीएमसी मंडी अपने कब्जे में क्यों नहीं लेते हो? आप है ये दम आप में? बताइए, आपने
आपने बिहार में मंडियां खत्म कर दी थी। अरे आप क्या अपने हुआ है कब्जे में लो वहाँ? ना एमएसपी मंडियां। मिल रही है क्या? किसान अपने कब्जे वहां में तो ले, आप लगातार मंडियां आपकी छोड़ो ना। सरकार है। आप अपने कब्जे सबसे में लो सस्ता मंडियां, गेहूं और दिक्कत क्या है धान आपको? बिहार में बिकता है। अरे सबसे आप क्यों सस्ता नहीं गेहूं लेते और धान मंडियां अपने बिहार में कब्जे बिकता में? है। किसान आपने संस्थाएं मंडियां मंडियां खत्म कर दी बनाए। वहां। अगर अरे मंडियां नहीं किसान होगी संस्था तो मंडियां व्यापारी बनाए। कैसे खरीदेंगे? बिहार का उदाहरण ले लो आप। अरे भैया किसान संस्थाएं मंडियां बनाए। आपको सब कुछ आता है, आप सब अरे बड़े पढ़े किसान लिखे इतना, लोग हो। किसान के करो ना पास काम, इतना होता जिम्मेवारी तो लो। वो क्यों बेचने जाता? वो घर में स्टॉक नहीं कर अरे लेगा भैया क्या? आप मंडियों की किसान की जिम्मेवारी क्यों नहीं Moment, लेना कैपेसिटी, just for the चाहते? moment, if I could अगर also bring in किसान की Ambassador मंडियों की कैपेसिटी Dasgupta. नहीं जिम्मेवारी होगी क्यों तो नहीं लेना मंडियां चाहते? Ambassador, खुलेंगी I नहीं, really वरना allowed this debate to happen because I wanted to thoroughly understand what the grievance of the farmer is and what really is the version of the government as well. And I think we've heard both sides clearly. But Ambassador Dasgupta, I'd really appreciate if you could tell us about this negotiation that we're seeing on both sides, India, US. How much of it is real economic negotiation, and how much do you believe is India coming under pressure to ensure goodwill with the United States? And do you feel that in any way the country may have compromised at any level? Of course, as an ambassador and objectively looking at the trade deal at this point, we look at it as to India's benefit. But I'm not too sure if our farmers have a level playing field, because agriculture in the United States is heavily subsidized. So they come with that kind of government backing there as well. So farmers here are always feeling slighted. They're always saying that we don't have minimum support price, we don't have this, we don't have that, government is not backing us, we have all seasons, and we have a drought, and we have heavy rains, and there's not proper backing. So farmers are often left in the cold here, which they complain. And at a time like this, fresh products coming in that sector is obviously making them a little nervous. What's your take on that? I think the first point that needs to be kept in mind is which are the products which have been protected, on which there is very clear indication that no market access will be provided. And that includes all the cereals: paddy, wheat, corn, millets, and the works. The second aspect is that there is an indication that we will open up our market by reduction. It is not substantial reduction. Sorry. Elimination or reduction in tariffs is what has been mentioned in the context of industrial products. It is the same about the other agricultural products also. So the quantum of reduction, let's say for almonds, walnuts, pecan nuts, and other tree nuts, which are in any case already, as pointed out by Mr. Sadana, we are importing a lot, and we are importing also from Afghanistan and Iran and earlier Iran and other places in the world, because we are not Yeah. self-sufficient and our consumption has been going up. So, that is one thing. The second aspect is about soybean oil, which has been specifically mentioned about being allowed. Now, soybean oil, of course, forms only a small part of our imports. Our imports are between 55 and 60% of our total requirement is imported. Around 16 million tons against about 24 million tons of 25 million tons of total consumption. So we keep importing oil. Most of it is palmolive. About 40% of what we import is palmolive, but we do import some amount of soybean oil because it is expensive. We import less of it, and the rest is a mixture of oils, which includes, of course, mustard oil or canola oil, etc., etc. Now, whenever the prices of edible oil go up, the consumer price index goes up, and when we immediately bring down the import duty on palmolive, for instance, because that is the largest component. So we have been doing it over a long period. And as far as walnuts and almonds and other tree nuts are concerned, we had given concessions. We had reduced the tariffs on an MFN basis for all comers in the world, that is WTO members, even in the early 2000s, when President Bush Jr. had made a request to the government of that time.
So these are not things which are new. These are things which we also require for our domestic consumers. Now, the last issue is about some vegetables and some fresh fruits, which also will be put in the basket. And I take the Yeah. point which Mr. Malik has Yeah. mentioned, that the details are not known because they have not been negotiated. So what is it on the minds of the Indian government when they go to the negotiations and they place their offers? That is what I think needs to be uh, you know taken into consideration, because But you know, from it the doesn't sit farmers well, right? How protest. it's very skewed to see that a framework of a trade deal is first done, and then the further details are discussed only later. I don't know if this is the norm. Is this the norm? You don't discuss the Yes, fine details before without, actually agreeing on a trade deal? without, suppose you go to buy a piece of property, you first ask the owner of the property whether you want to sell, and only then you get into the details. The framework agreement, of Yeah. course, is signed first, and then the details are worked out, and it depends on give Okay. and take. So what is it that India is willing to give in agriculture in the areas which have been specified: tree nuts, soybean oil, some fruits fresh and processed, and some vegetables. These are the things, because cereals have been kept totally out, dairy has been kept totally out. And as far as marine products are concerned, in the terminology of the WTO, they are not considered to be agricultural products in any case. They are considered to be industrial products. So I think a lot of the disquiet and apprehension, which I share to a certain extent with uh, the with Mr. Malik, that is because it is uncertain as to what will be the areas in which there would be give, and will it be at the cost of, let's say, a small segment of farmers, because there are soybean producers in Madhya Pradesh, in Maharashtra, and they are cultivating soybean in under rain fed conditions, in semi arid conditions, so they can't match the prices of heavily subsidized soya. But the point is that whatever they are producing, they are able to sell. And soybean oil has been imported for many years now from around the world. We imported from Argentina, from Okay. Brazil, and Yeah. some amount from the US. So it's already being imported. So it is, the devil lies in the details as to what are we going to concede in order to get this 18% and reduction further to, let's say, whatever, 10% or 5, or the MFN rates of 3%, which had been imposed earlier. Right.